यस, तेजस्वी स्टार्ट कर दो। Okay. Properly visible? यस। Hello? Okay. A sizzling good afternoon to each and everyone present over here. Today, myself Tejaswini Sahu from Tat Vitark Club is going to conduct a debate competition where a smart answer won't get you fired. Let me introduce our judge, Mr. Kiran Jadhav sir, who had completed his BA, MA, B.Ed in English Literature from Gujarat University. Right now, currently, he is a trainer of Youth for Job Foundation. We welcome you, sir. Now, the most important part of debate competition, rules and regulations. While speaking, you have to turn on your camera. Your voice should be loud and clear. You can use both language, English and Hindi. Your gesture must be counted by points. Over to you, Akash. हर एक ग्रुप के अंदर 3 से 4 लोग होंगे। आपको टॉपिक के इंट्रोडक्शन के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद डिबेट के लिए 5 to 6 मिनट दिया जाएगा और कंक्लूजन के लिए 1 to 2 मिनट दिया जाएगा। ओवर टू यू, विधि। Very, thank you very much for introducing me. Hi everyone, I am Kiran Jadhav. We all know that it is very toughest task to be a judge, and I have been given this responsibility. I hope that I can I can do my best. Thank you very much. Hello everyone, I am Vidhi Kadivar. Once again, welcome to all the participants. So here we start with the attendance. I announce the name of participants and they have to unmute and say yes. I hope all are joined the meeting. Dhruvin Gandhi, Yes. Divya Jawalwala, Yes. Hetvi Parekh, Yes. Ishita Ruparelia, Ishita Ruparelia, Janvi Nimawat, Janvi Nimawat, Khushi Jota, Yes. Kajal Virwani, Yes. Krina Brahma Bhatt, Krina, Kajal Khatnani, Yes. Kishan Rathod, Yes. Lakshit Sonia, Lakshit Sonia, Meet Vora, Meet Vora, Nupur Shah, Nupur Shah, Nishit Panchal, Nishit Panchal, Rutvik Panchal, Rutvik Panchal, Shrey Kanabar, Yes. Suzanne Sheikh, Suzanne Sheikh, Vaisali, Vaisali Chelani, Vanraj Makwana, Vanraj Makwana, Yatri Mandalia, Yes. यहाँ कोई ऐसा है जिसने पार्टिसिपेट किया है पर उसका नाम नहीं आया हो? नहीं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो लोग एब्सेंट हैं अगर कोई हो तो बता देना। इशिता रूपारेलिया,
Krina Brahmabhat, Lakshit Sonia, Neet Vora, Nupur Shah, Nisit Panchal, Rutvik Panchal, Zan Sheikh, वैशाली चेलानी, वनराज मकवाना। कोई है इसमें से? ओके विधि, आप ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के नाम बोल दो तो वो डिबेट के लिए रेडी हो जाए। हाँ। फर्स्ट ग्रुप ध्रुवीन गांधी, दिव्या जवालवाला, हेतवी पारेख, खुशी जोटा, काजल विरवानी एंड काजल खटनानी। प्लीज ऑन योर कैमरा एवरीवन। सो यहाँ पे कुछ लोग एब्सेंट है तो मैं ग्रुप को मर्ज कर रही हूँ कुछ लोगों। फर्स्ट ग्रुप है ध्रुवीन गांधी, दिव्या जवालवाला, हेतवी पारेख, जानवी निमावत एंड खुशी जोटा। ये फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड ग्रुप काजल विरवानी, क्रीना ब्रह्म भट्ट, किशन राठौर, श्रेय कानाबार एंड यात्री मांडलिया। ऑल आर क्लियर? किसी को कोई क्वेरी है? Can you repeat? हाँ, ध्रुवीन गांधी, दिव्या जवालवाला, हेतवी पारेख, जानवी निमावत, खुशी जोटा। ये फर्स्ट ग्रुप है। काजल विरवानी, काजल खटनानी, किशन राठौर, श्रेय कानाबार, यात्री मांडलिया। ये पांचों का दूसरा ग्रुप है। Hello. Group 1 and group 2 are merged, and group 3 and group 4 are merged. Yes, Am I sir. right? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So it is for my convenience because I have to remember their names and okay, got it. Now we're going to start our debate competition. Before that, I hope all are clear with the rules. If anyone has a query, they can ask. अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। रूल्स एक बार रिपीट कर दें, मैं भी आ जाएगा। Okay, sure. While speaking, you have to turn on your camera. Your voice should be loud and clear. You can use both language, English and Hindi, and your gesture keeps marks. Okay, thank you. So now we start our debate competition. The first group. Hello, Vidhi. Uh, I do have a question, and the question is, what about the group 5 and 6? Nupur, सर Nishi. सर Yes. वो लोग एब्सेंट है Okay, no issue. तो Okay, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को ऐसे मर्ज कर दिया है। ठीक है, okay. ओके। So once again I repeat the name of first group. ध्रुवीन गांधी, दिव्या जवालवाला, हेतवी पारेख, जानवी निमावत and खुशी जोटा. So are you guys ready? Yes. Are you guys ready? Yes. All the best. And here, sir will announce the topic for you. Sir, please give the topic. Hello, sir. Yes. Just a moment. Okay, sir. So there are many topics I have been telling you. You have to select one of them and discuss on that. So the first topic is online learning versus offline learning. The second topic is pros and cons of social media. The third one is city life versus village life, which is good. The fourth one, advantages and disadvantages of 5G network. Next one is COVID era and emerging business versus loss of existing business.
And the last one is women are better multitasker, agree or disagree. So which one would you like to select? Maybe second topic, the So pros and cons of maybe, social media. yes, we can go for it, or maybe women are multitasker. Okay, okay. So, all are agree with her. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मतलब एक 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 मिनट बोलना है आपको टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में ईच वन ऑफ यू। उसके बाद डिबेट स्टार्ट होगी 5 to 6 मिनट्स के लिए और आफ्टर दैट 1 to 1 मिनट के लिए कंक्लूजन करना है आपको। And your time start now. Just a second. Can you tell us the final topic? Final topic. Because we proposed two topics, so which one is final? Pros and cons of social media. You can start now. Okay, done. You can start. Now you all are ready. Now we can start. You can Hello. start with Navin Gandhi. Are you guys ready? Yes, we are. Yes. Now we can start. Okay, can I start then? Yes, Okay. sure. Sure, sure. Okay, so definitely social media has both the cons and the pros, but I think pros are more than the cons because nowadays it is not just social media, it helps us in connecting people, but it is also developing many businesses nowadays. So definitely I think social media is a has many pros than as compared to its cons. That's all. Thank you. Yeah, can I start? Yes. Yeah, I'm at the negative side. सोशल मीडिया हैव अ वेरी कॉन्स, उसमें ज़्यादा हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और कितने सारे ऐसे भी सोशल मीडिया है कि जिसमें अभी बच्चे को नहीं जाना चाहिए और हमने उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन फॉर ऑल रख दिया है, तो कई सारे लोग उसमें नहीं जाना होता है फिर भी चले जाते हैं और वहाँ आपका टाइम सबसे बड़ा टाइम वेस्टिंग आप उसको प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं कुछ, जिसमें आपको 10 मिनट के लिए अगर आपको रहना है तो आप कहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा निकाल दोगे आपको भी पता नहीं चलेगा। और उसमें क्या होता है कि वो आपको इतना खींच के रखता है कि आप उसमें इतने अंदर चले जाते हो कि आपको भी पता नहीं चलता और एक लंबे टाइम के बाद उसको आपको उसकी हैबिट पड़ जाती है और अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव ना रहो तो आपको उस जात का वो क्या बोलते हैं कि फोबिया हो जाता है कि आपको उसमें ही रहना है, ऐसा हो जाता है। Yes, can I go next? Yes. Okay, so every coin has two sides. So social media also has pros and cons, but I feel that cons are less, but they are more effective than the pros because like cyberbullying, like it is majorly done in India because people are trolling influencers or anyone. They're commenting on anyone's personal life, and it is affecting like a lot. People are performing suicide. People are also depressed due to the negative comments that they are receiving on social media.
from different people. Being a girl, many times we also feel like we are even bullied, like from using social media. Like people are messaging us, people are using our private information, like our number, our photographs. So it has many less cons, but they are more effective than the pros. Yes. Divya Next, and Raju, January. please. Divya and January. Hello, Divya. जैसे सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, बट देखने जाए तो हम पे ही डिपेंड है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम देखने चाहें तो बहुत कुछ वहाँ से सीख सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है जो हमें पता नहीं होती है, तो हम वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। Janvi Nimawat. You can start debate now. Hello, Okay. am I audible? Yes, yes. Actually, social media time wasting है और time saving दोनों है. If we are using good way, then it's good for us. If we are doing vlogging and blogging, all things on social media, so it is beneficial for us. And if we are suffering मतलब YouTube and WhatsApp and YouTube and so it's time wasting for us. So there is pros and cons, both are equal. आकाश, कैन वी स्टार्ट? Yes, sure. Yes. Now you या all तो are. सबसे पहले सोशल मीडिया में कितना बड़ा नुकसान है कि आप सोशल मीडिया में एक बार जाओगे तो टाइम आपका कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बट नाउ तो हमको सोशल मीडिया ही काम आ रही है ना, हम भी सोशल मीडिया पे ही पढ़ रहे हैं। वो सोशल मीडिया नहीं है, आप जिस पे पढ़ रहे हैं वो सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया में क्या इंक्लूड होता है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह। ये गूगल मीट सोशल मीडिया नहीं है, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। देख लो, आप व्हाट्सएप के बिना भी आज के दिन में कॉलेज नहीं अटेंड कर पाते। आपको लिंक कोरोना कहाँ के से मिल टाइम जाते? पे कोरोना के टाइम पे we used to एक use so लिमिट, much हाँ मैं fake कह रहा हूँ ना कि हम लेक्चर्स के लिए क्या यूज करते हैं? सोशल मीडिया ही यूज करते हैं, उसके लिंक। हाँ, आप एक लिमिट से ऊपर जाओगे अभी तो उसमें आप नहीं कर पाओगे। लिमिट्स हमें सेट करनी होती है, वो सोशल मीडिया की, वो सोशल Yes, मीडिया we can connect. और उसमें भी लिमिट हम हमें सेट करनी है, पर उसका क्या होता है कि अगर आप सोशल मीडिया, एक रिसर्च के मुताबिक ऐसा प्रूव हुआ है कि अगर आप सोशल मीडिया आप एक्टिवली दिन में आप 20 मिनट्स डेली आप यूज करते हो तो एक टाइम पे आपको उसका एडिक्शन हो जाता है कि अगर आपका व्हाट्सएप, अगर आप हमारी बात करें तो यंगस्टर में कैसा हो गया, किसी का भी मैसेज आया, कुछ भी आया, जैसे फोन में That is up to us कि कितना हमको यूज करना है। हाँ, कितना हमको डिसएडवांटेज लेना है, कितना हमको एडवांटेज लेना है। लिमिट को तोड़ देते। अगर आप मन से भी ठान लो आपको नहीं देखना है, फिर भी कोई और तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है ना। नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी आप लोग लिमिट रख सकते हो। हाँ, तो बंद करना है तो वो उसका बंद क्यों करेंगे? अगर उसका डिसएडवांटेज होता है तो ही हम बंद करेंगे ना। तो अल्टीमेट बात तो वही है। हम सोशल मीडिया के अगर आप करना चाहोगे अगर आपको किसी के साथ बात ही करनी है, सुनो, आपको किसी के साथ बात करनी है तो आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हो ना। सोशल मीडिया से बात कर, उसमें इमोशन ही नहीं है, कोई इमोशन भी नहीं है उसमें। आप सेंड कर रहे हो किसी को, आप हैप्पी वाला इमोजी सेंड कर रहे हो, आप रियल में हैप्पी नहीं हो, आप एंग्री हो, फिर भी आप हैप्पी वाला इमोजी सेंड करते हो। सोशल मीडिया इज टोटली वेस्ट। डिपेंड्स ऑन यू, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट ये सिर्फ हमारे जो हमारे डिपेंड नहीं करता। वी आल्सो रिसीव सो मच ऑफ फेक न्यूज़ एट द टाइम ऑफ कोरोना कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन उठ गया। वी आल्सो फेक Yes. भी है, फेक न्यूज और ऑथेंटिक न्यूज भी है। जो अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, डे टू डे लाइफ की बात और हमारे डे टू डे, हाँ, सुबह उठ के हम लोग
हम असाइनमेंट की बात करें तो हम असाइनमेंट भी तो सोशल मीडिया ऐप से ही हम लोग सबमिट कर सकते हैं ना, उसके बिना तो काम ही नहीं होता, वरना हमको मार्क्स ही नहीं मिल रहे। के पहले जब तक सोशल मीडिया नहीं आया था उसके पहले भी लोग असाइनमेंट सबमिट करते ही थे और कई सारे वे थे। सोशल मीडिया यानी आप इंस्टा पे चैटिंग करते हो, आप फेसबुक, हम सोशल मीडिया पे हम लोग अपलोड करेंगे कि हम लोग ये चीज रखते हैं, तो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही एडवांस होंगे ना। अरे भी होते हैं ना, हम यूसेज पे क्यों सिर्फ जा रहे हैं, उसके कितने सारे कॉन्स भी है कि अभी कल ही मेरी बहन मुझे बोल रही थी कि एक लड़की ने उसके क्लास के एक लड़के पे एलिगेशंस लगाए, झूठे एलिगेशंस कि उसने उस पे रेप किया, जबकि वो बिल्कुल गलत था। तो उसको सोशल मीडिया पे बहुत बुली किया गया और उसने कल सुसाइड कर लिया। और फिर पता वो तो सोशल मीडिया नहीं होता और तो आप देख सकते हो कितने सारे फेक आईडी है। हो जाता है। दावा किया है कि उसने अभी दावा किया है कि 10% फेक आईडी अभी भी रन हो रहे हैं। उसने भी दावा किया है कि एक लड़के पे झूठा जोमेटो वाला केस हमने देखा था कि लड़की ने उसके झूठा उसने मुक्का मारा था, उसको उस लड़के की जॉब चली गई ड्यू टू सोशल मीडिया के सबने उसको बहुत ब्लेम किया। सोशल मीडिया के थ्रू लोग एक चीज के पीछे लग जाते हैं तो कोई चीज पता चल गया था कि लड़की गलत बोल रही थी और सिर्फ उस लड़के का दोष नहीं था, उसने लोग के वीडियो भी बनाया था कि तो वही बात हुई ना, सोशल मीडिया से ही सामने आई और फिर लड़की को ब्लेम कर दिया गया। तो फिर एक लेवल तक सोशल मीडिया का यूज सही है, पर अभी क्या हो रहा है सोशल मीडिया में कोई भी जिसमें कोई भी थॉट भी नहीं है, ऐसा भी मैसेज आप रख दो तो उस मैसेज को भी लाइक करने वाले 100 लोग आएंगे और वही मैसेज आगे स्प्रेड होता जाएगा और फेक मैसेज सबसे ज्यादा एक मैसेज सबसे ज्यादा स्प्रेड वो भी अनयूजफुल हो गए। आप जोक कर देते हो एंटरटेनमेंट के लिए और वो दो लोग ने उस पर हंस दिया तो वो भी क्या यूजलेस हो गया। आप नॉर्मल लाइफ में बिना सोशल मीडिया के कभी जोक नहीं मारते। हाँ, पर वो जोक मारो ना तो आप फिजिकल तो 2 लोग के साथ शेयर करो या 100 लोग के साथ शेयर करो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मारना बुरी बात नहीं है, पर सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा वेस्टफुल थिंग भी है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, जोक भी नहीं है। वो डिपेंडेंट है, वो हम पे डिपेंडेंट है कि हम क्या होता है उस पे उसके साथ ट्रोलिंग भी कितनी की जाती है, उसके पर अभी ट्रोलिंग का रेट अभी देखो ट्रोलिंग सोशल मीडिया के ट्रोलिंग की वजह से कितने लोगों ने सुसाइड किया है, कितने लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आया है और सबसे बड़ा उसका नुकसान कितने लोग सुसाइड भी परफॉर्म करते हैं ड्यू टू सच न्यूसेंस जो सोशल मीडिया पे होता है। अगर 10% लोग सुसाइड करते हैं, नो डाउट सुसाइड करते हैं, पर अगर 10% लोग सुसाइड करते हैं तो उसके सामने 100% लोग अपने घर भी चलाते हैं उसके हिसाब से। और सोशल मीडिया से सब लोग घर नहीं चलाते, किसी की लाइफ चली जा रही है, सब लोग नहीं चलाते, तो सब लोग जो सोशल मीडिया करते हैं उनका वो सारे सुसाइड भी तो नहीं करते ना, तो सारे घर नहीं चलाते ना सोशल मीडिया। हेलो एक सेकंड सर कुछ बोल रहे हैं। हेलो दिव्या एक सेकंड सर कुछ बोल रहे हैं। ये डिबेट इस तरह से हो रहा है कि मुझे नहीं पता चलता कि कौन फेवर में है और कौन इन फेवर में। सो आई वुड लाइक टू से दैट कि जो लोग उनकी फेवर कर रहे हैं कि सोशल मीडिया अच्छा है, मैं उनको बोलूंगा कि कुछ ऐसा एक पॉइंट दे ताकि वो जो उसके इन फेवर में है या उसको अच्छा नहीं बोलते वो उसको अपोज कर सके। The person who are in favor of social media means advantages of social media can give a point so that the others can answer it. So can I start then? Yes. So Divya. As they said, okay, sorry sir. Divya, please start. Yes sir. एक्चुअली अगर सोशल मीडिया पे मैंने लास्ट में ही देखा एक बच्चे को ऑपरेशन करवाना था, तो वो फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं थे, तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली और वही पोस्ट के थ्रू उनको लोगों ने फंडिंग किया उसके लिए, तो वहाँ से वो बच्चा आज एक वो जी रहा है, उसकी एक ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट हो रही है ड्यू टू सोशल मीडिया। लोगों ने उसको शेयर किया, उसको फंडिंग मिला, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत अच्छा है। हम कोई I want to oppose that, दिव्या। पर आपने वो बाबा का दादा वाला केस सुना था कि पहले उसको कितना सपोर्ट किया, फिर बाद में क्या हुआ? तो और आप जो बच्चे की बात कर रहे हो, ऐसा सेम केस भी हो गया है कि किसी को नीडफुल हो और उसको जरूरत चाहे और उसके नाम पे किसी ने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया। अभी रिसेंटली इंस्टा पे हुआ था
वो कोई फॉरेन का था और सब उनमें सब कोई डोनेट कर रहे थे और वो फंडिंग जा रहा था कहीं और जगह। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा वो नुकसान है, आपको पता ही नहीं है कि हम किस पे ट्रस्ट करें, कौन सी पोस्ट सही है, कौन सी पोस्ट गलत है, आरजे कौन सा रिलायबल है, कौन सा रिलायबल नहीं है। अनुष्का शर्मा है, ये सब सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाते हैं ड्यू टू फाइट फॉर कोरोना। हेलो, जस्ट अ मिनट, आई वांट टू इंटरप्ट। जैसे अगर कोई प्रोस बता रहा है, सो आप अपना पर्टिकुलर पॉइंट बताएं। जैसे प्रोस के लिए आप पर्टिकुलर पॉइंट दें ताकि सर आपको उसी बेस पे जज कर सके। एंड कोई कॉन्स बता रहा है, सो उसी बेस पे आप कॉन्स के बारे में पर्टिकुलर पॉइंट्स दे दें। ओके, कंटिन्यू। ओके, सो एज दे सेड दैट एज फैक्टर छोटे बच्चे होते हैं पर वो लोग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम गलत एज डाल के सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट वो था कि वो हैबिट बन जाता है, तो वो भी हम पर ही डिपेंड करता है। हम उसमें प्राइवेसी लिमिट्स भी लगा सकते हैं कि अगर मैंने 2 घंटे का लिमिट लगा दिया है तो मैं 2 घंटे से ऊपर एक दिन में नहीं यूज़ कर पाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो भी एक पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट वो हो गया कि उन लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है, तो वो तो वैसे भी हो जाएगा। अगर हम किसी से कांटेक्ट में ही नहीं रहेंगे तो हमें दुनिया के बारे में पता ही क्या चलेगा कि क्या चल रहा है दुनिया में, तो वो तो वैसे भी हो जाने वाला है अगर हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं रहेंगे। तीसरी बात हुई ट्रोलिंग की। ट्रोलिंग में वो होता है कि देखो, अगर सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको वैसे भी ट्रोलिंग हो जाती है उनकी, पर कितने ऐसे लोग भी हैं, हम खुद देखते हैं कितने यूट्यूबर्स हैं जिनका घर उनसे चलता है, सोशल मीडिया से ही चलता है। तो वो भी एक पॉइंट हो गया कि उनका घर चल रहा है, ऑल्दो उनको ट्रोलिंग इफेक्ट कर रही है, पर नो डाउट वो लोग भी इतने स्ट्रांग इनफ हैं कि वो लोग ट्रोलिंग सहन कर सके, उसी की वजह से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सुसाइड और डिप्रेशन का एक पॉइंट था, तो उसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि सुसाइड हो जाते हैं, पर सुसाइड सिर्फ सोशल मीडिया से होते हैं ऐसा नहीं है। वो हमारी मेंटल कैपेसिटी पे है कि हम कितना उसको टॉलरेट कर पाते हैं। अगर हम टॉलरेट नहीं कर सकते तो उसमें हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुसाइड तो अगर हमें मार्क्स नहीं आएंगे तो भी 10th क्लास वाले सुसाइड कर लेते हैं, 12th क्लास वाले सुसाइड कर लेते हैं। उसमें वो पॉइंट हम नहीं ला सकते। दैट्स ऑल, थैंक यू। और कौन सा मैं ये सारे पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई भी आइडेंटिटी के साथ कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर सकता है। अगर मैं बॉय हूँ तो भी मैं गर्ल के अकाउंट्स को रन कर सकता हूँ। फिर दूसरा होता है कि आप किसी को भी फ्रीली बुलिंग कर सकते हो। अगर आप देखते हो कोई भी फिल्म स्टार या फिर कोई भी हो तो उसके पीछे लोग लगे रहते हैं, कौन कर रहा है कोई भी पता नहीं है। अननोन आइडेंटिटी से भी आप कर सकते हो और इससे मेंटल हैरेसमेंट भी होता है। थर्ड पॉइंट है कि आप वर्चुअल इतने आप घुस जाते हो कि आपके बाजू में क्या हो रहा है आपको पता नहीं। अगर अभी यंगस्टर की बात करें तो सारे यंगस्टर अपने फोन में ऐसे घुसे हुए होते हैं कि उसके बाजू में उसके फैमिली में क्या हो रहा है वो भी उसको पता नहीं चलता। फिर फोर्थ थिंग है वो कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू इनकम जनरेट करना चाहते हो, दैट फाइन कि आप इनकम जनरेट कर रहे हो, पर सोशल मीडिया में इनकम जनरेट करने के लिए अभी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म के वो हम कहते हैं कि ऑफेंसिव सारी पोस्ट या फिर ऑफेंसिव वीडियो और वो भी लोग शेयर कर रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और देश के जो यंगस्टर है, देश के बच्चे हैं, वो अलग ट्रैक पे जा रहे हैं उससे, कि जो उसको नहीं सही दिशा पे उसको जाना चाहिए वो छोड़ के वो अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। और साथ में है कि उसका बेनिफिट है कि आप शेयरिंग और ये सब कर सकते हो, पर उससे क्या हुआ है कि लोग कोई भी काम हो, चलो मुझे ये तुम व्हाट्सएप कर देना, मुझे ये तुम मुझे शेयर कर देना, तो एक जो रिलेशन होता है वो मेंटेन नहीं हो रहा है। कि अगर हम एक दूसरे के साथ ये साइकोलॉजिकल भी प्रूव हुआ है कि अगर हम एक दूसरे के साथ हम अच्छे से बातचीत करें फिजिकली में तो वो हमारा हार्ट टू हार्ट या फिर वो कनेक्ट होता है। ये सोशल मीडिया में वो कनेक्ट ही नहीं। आप किसी के मीम पे आप हंसी वाला इमोजी सेंड कर रहे हो पर अंदर से आपको 1% भी उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं होती है ऐसा। थैंक यू सर। ऑन द कॉन साइड आई वुड लाइक टू से दैट हम कितना भी बोल रहे कि यार इट इज अप टू अस, हम लिमिट सेट करते हैं कि हम इंस्टाग्राम कितना यूज करेंगे, व्हाट्सएप, बट एट द एंड हम ही उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं कितना भी ट्राई कर ले, लाइक वी कैन रेजिस्ट आवरसेल्व्स। और दूसरी बात कि जो अभी ये बोल रहे कि जो नोबल कोर्स यस होते हैं ऑफ कोर्स, बट उसके सामने कितने भी ऐसे भी केस है, जैसे बाबा का ढाबा था कि आई डोंट नो द परफेक्ट नेम, बट हमने सब उनके पीछे कितने पागल हो गए थे। सबने डोनेट किया, कोई तो कमाता कितना है और उसने डोनेट भी उतना ज्यादा किया होगा, बट देन उसका कुछ अच्छा काम हुआ? आई डोंट थिंक कुछ अच्छा काम हुआ। वो उनको लगा कि मैंने कुछ अच्छा ही ज्यादा काम कर लिया कि सब लोग मेरे पीछे पागल हो गए। And then the next point is that we compare ourselves with the people we see on the Instagram.
लाइक यार ये इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम क्यों नहीं, लाइक हम तो बोलते हैं कि यार हमको किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी की लाइफ हमसे कंपेयर नहीं करनी चाहिए, बट एट द एंड हम कर ही लेते हैं। दैट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि हम कर ही लेते हैं उनके साथ कंपेयर, और हम वी आर इनफ मेंटली स्ट्रांग कि हम उससे सुसाइड या कुछ ऐसा नहीं करते। बट सब लोग तो ऐसा कोई स्ट्रांग नहीं हो सकते कि वो दूसरों से ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो सके। कितने लोगों ने सुसाइड परफॉर्म किया, डिप्रेशन में चले गए हैं, कितने ज्यादा लोग बहुत ही गंदे, बहुत ही वाहियात ट्रोलिंग लेवल पे आ जाते हैं। लाइक उससे पर्सन की पर्सनल लाइफ भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। Like if they share their public life, it also affects their personal life. Then I would like to say that डिप्रेशन में तो लोग चले ही जाते हैं। फिर अगर लड़की है तो बस अगर प्राइवेट पब्लिक प्रोफाइल रख दी तो बस बहुत बड़ी गलती होगी। उसके फोटोज, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स है जो फेक अकाउंट यूज करते हैं। किसी भी लड़की का जो प्राइवेट पब्लिक अकाउंट होता है उसके फोटो यूज करके वो अकाउंट चलाते हैं, फिर लड़कों को मैसेज करते हैं, फिर पता नहीं क्या प्रैंक्स करते हैं। So this nuisance still happens, and I think it will increase more in the upcoming generations. Yeah, that's all. खुशी, मैं तुमसे कहना चाहूँगी कि तुमने जो बोला कि लोग सोशल मीडिया पे देख के कंपैरिजन करते क्लोथ के बारे में कि उसने अच्छे कपड़े पहने मैंने नहीं पहने, तो वो तो हम फिजिकली भी देख के कर सकते। अरे उसके पास अच्छी गाड़ी है मेरे पास नहीं है, तो वहाँ पे सोशल मीडिया इफेक्ट करता है। हम हर लोग सब पे तो नहीं जा सकते ना। सोशल लाइफ हमें प्लेटफॉर्म देती है सोशल मीडिया कि हम हर एक इंसान को देख सके, हर एक इंसान की लाइफ देख सके। आप फिजिकल लाइफ में हम हर किसी के घर पे तो जाके नहीं देख सकते। कल लास्ट में ही हमारा एक सोशल क्लब करके हमारा एक इवेंट हुआ था, बाइसिकल लाइब्रेरी बाइसिकल करके। तो उसने वो एकदम उसने बहुत शुरू से स्टार्ट किया, पर सोशल मीडिया की वजह से उन्होंने इतने सारे लोगों को बुक शेयरिंग किया। So that's what I'm saying, अच्छे कॉज है तो बुरे कॉज भी उतने ही हैं जो इतने लाइमलाइट में नहीं आते। अच्छे कॉज के सामने वो लोग इतने लाइमलाइट में नहीं आते, पर एट द एंड होते हैं जो नहीं पता होता। इंसान अच्छा है तो हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि सब कुछ गंदा है। तो हम तो हर इंसान गंदा है तो अच्छा तो मैं भी नहीं बोल सकती और हर इंसान गंदा भी है। हम भी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाए, हम अवेयरनेस बढ़ाए सोशल। अगर हम यहाँ पे है, लाइक आप कहाँ पे हो, मैं कहाँ पे हूँ, सोशल मीडिया की वजह से हम कनेक्ट हो पा रहे एक दूसरे से। दिस इज नॉट सोशल मीडिया, ये तो ऑनलाइन एजुकेशन है। दिस इज नॉट सोशल मीडिया। यस, वी कैन शेयर द लिंक्स, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये ऑनलाइन एजुकेशन कोई सोशल मीडिया नहीं है, दैट इज अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। नहीं, अगर मैं इंस्टाग्राम पे बात करूं, मेरा फ्रेंड कहीं घूमने गया है और मैंने वो जगह नहीं देखी है, तो अगर वो इंस्टा पे लाइव है तो मैं देख पा रही हूँ। इट्स अ बेनिफिट कि हमको। अरे पर वो कितनी छोटी चीज है, उसके सामने कितनी बड़ी बड़ी चीज है जो हैपन हो रही है बट हमें नहीं पता। आप जो ये इंजेक्शन की बात कर रही थी, जो बच्चों के लिए पैसे डोनेट करते हैं, ऐसे आप कैसा बोल सकते हो कि आप अगर किसी और को अपने पैसे दिए और उसी बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए यूज हुए हो? डू यू गेट एनी प्रूफ? सारे कोर्सेज जो ऑनलाइन अभी फ्री में है, तो हम कहाँ से उसकी नोटिफिकेशन मिलती है? हमें इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे ही मिलती है। लाइक मेरे एक फ्रेंड ने एक पोस्ट डाली थी कि मैंने आपको लॉकडाउन के टाइम पे कितनी फेक न्यूज देखी कि अगर आप ऐसा मैसेज भेजोगे तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन होगा उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा। ऐसी कितनी सारी फेक न्यूज थी जो व्हाट्सएप के कोरोना के टाइम पे आ रही थी। यस, वी गेट अपडेटेड ड्यू टू सोशल मीडिया, बट उसके कॉन्स उतने ही है, कितनी ज्यादा फेक न्यूज भी आती थी। कितने लोगों को वो भी हेल्प मिल गई होगी, उनको इंजेक्शन की जरूरत थी, उन्होंने बस सोशल मीडिया पे डाला और उनको मिल गया। कितने लोगों को प्लाज्मा की जरूरत थी, उसने बस सोशल मीडिया पे डाला। इवन वी सॉ इन्फ्लुएंसर्स पोस्टिंग for the requirement of plasmas and they got it just because of social media, otherwise it was not possible. एक हैदराबाद में बैठा होता है, उसको पता भी नहीं होता कि दूसरे हैदराबाद वाले ही पर्सन को जरूरत है, पर through one social influencer it is possible and it did became yes, that's what I'm saying. It has some cons, it has some pros, but उसके cons neglect नहीं कर सकते कि कितने ज्यादा लोगों को उसके कारण neglect नहीं कर सकते। कौन सा अगर neglect नहीं कर सकते तो हमें उसके बारे में अवेयरनेस लाने की जरूरत है। उसके बारे में हम खुद अवेयर हो जाए तो हम सेफ रह सकते हैं। ऐसा नहीं है हम आप अगर इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हो तो इन्फ्लुएंसर ऐसे प्लाज्मा और कोरोना के वक्त काम आया था, उसी की हम उसके लिए तारीफ करते हैं। तो सेम वे उसी प्लेटफॉर्म पे उसी की पोस्ट पे हम उसको बुलिंग भी करते हैं। वही सोशल मीडिया का सबसे बड़ा कौन है।
वो लोग गए आइडेंटिटी होंगे, वो लोग अगर सोशल इन्फ्लुएंसर बनने गए होंगे तो उनको उतना तो पता होगा, उनको उतना तो खुद से पता होगा कि मुझे ये सब झेलना पड़ेगा, तभी वो लोग गए होंगे, ऐसे हम नहीं कौन गए। है कि हम उनकी पर्सनल लाइफ और वो भी पे कमेंट अगर करें। हमें ऐसा है कि सोशल मुझे मीडिया के कुछ थ्रू बोलना आपकी कोई हो, पर्सनल लाइफ ही नहीं है। वही बोल रही हूँ, अगर हमें ऐसा है कि वो लोग को ऐसा है कि हम ट्रोल हो रहे हैं तो वो लोग कमेंट्स भी ऑफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है वो लोग कमेंट्स ऑफ नहीं कर सकते। दूसरों की वजह से क्यों अपनी प्रोफाइल पे कमेंट्स बंद करे? वो वो पब्लिक इन्फ्लुएंसर है। हाँ, तो फिर हम तो अपने ऊपर ले आते हैं, पर अगर हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं तलवार नहीं पकड़ूंगा, मैं तलवार नहीं पकड़ूंगा और सामने वाले मुझे आके मारेंगे भी नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। प्रोटेक्शन की बात नहीं है, लाइक वी आर नो वन टू जज एनीवन एल्स, लाइक हम किसी पर जज नहीं कर सकते। और ये जो जजिंग वाला कंसेप्ट है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही सबसे ज्यादा बढ़ा है। आप किसी और को जज कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही बढ़ा है। और बहुत से क्लासेस रहते हैं तो वो लोग देख रहे हैं, अगर हमें ब्लॉगिंग करना है तो हम 2 minutes some announcement. 2 minutes for conclusion. Yeah, Akash, can I conclude? हाँ, दो लोग कंक्लूड कर सकते हो, ध्रुवीन एंड कोई भी कर सकता है। हेतवी इज रेडी फॉर दिस। ओके, हाँ, तो सोशल मीडिया के प्रॉन्स है ये हम मानते हैं, पर जो प्रॉन्स की जो एक हम कहते हैं ना कि एक टोकरी होती है, जो प्रॉन्स की टोकरी है उससे ज्यादा प्रॉन्स की टोकरी में ज्यादा वजन है कि आपके पास थोड़े फायदे हैं पर बहुत ज्यादा नुकसान भी है। अभी से आप सोशल मीडिया पे इतने आप चले जाओगे तो आपको हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। आपकी जनरेशन जो है पूरी यंगस्टर जनरेशन है वो भी गलत ट्रैक पे जा रही है। और आप सोशल मीडिया ऐसी चीज है, आप वर्ल्ड के बीच में, पूरा वर्ल्ड आपकी पर्सनल स्पेस को भी देख सकता है और आप क्या कर रहे हो वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आई एम सेफ एंड मेरी जो है वो चीज किसी को पता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी चीज सब कुछ देख सकते हैं। और वो जो प्राइवेसी वाला मैटर है वो सोशल मीडिया में सबसे, वो कहते हैं ना कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और इसके लिए तो गवर्नमेंट ने भी एक्शंस लिए, काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए और रिसेंटली भी ले रही है। और ट्विटर और इंस्टा को पूरा वो बैन वाला वो सीन भी हुआ था अभी थोड़े टाइम पे पहले। और जो हम कहते हैं कि कोई टाइम हम सोशल मीडिया के थ्रू हम पूरी चीज को हम पॉजिटिव वे में भी ले जा सकते हैं, पर वो उसके लिए हमें पूरा उसका नॉलेज होना चाहिए कि किस वे में हमें उसको पॉजिटिव साइड में ले जाना चाहिए, और वो यूथ में नहीं है। इसीलिए सोशल मीडिया का ये जो पूरा यूज है वो नेगेटिव वे में जा रहा है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर माय साइड। Okay, I would like to say that definitely it has pros and it has cons, but the thing is it depends on us, हम कैसे यूज करते हैं। अगर वो बात है कि यूथ उसमें घुसते जा रहे हैं तो उसमें भी हम कर सकते हैं कि उस पर लिमिट्स लेके, जैसे पबजी के टाइम भी हुआ था। भले पबजी सोशल मीडिया नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट उसमें भी हुआ था कि गवर्नमेंट ने ही लिमिट सेट कर दी थी। तो सोशल मीडिया पे भी हम नहीं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट खुद से लिमिट सेट कर सकती है, वो एक हो सकता है। दूसरा कि फेक न्यूज़ वाला तो हम अपने आप में ही इतने अवेयर हो जाएं अगर कि हमें कौन सी न्यूज़ पे, अगर हम देखते हैं कि वो सोशल मीडिया के रहने देते हैं, न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में भी होता है कि हमें पता होता है कि हमें क्या फॉलो करना होता है, क्या नहीं फॉलो करना, क्या बायस होता है, क्या अनबायस्ड होता है। तो हम वैसे ही हम भी सोशल मीडिया को अगर फॉलो करें तो हमें डेफिनेटली हमें बेनिफिट होगा उससे। दैट्स ऑल। Thank you first group. Okay, Vijay, continue. Yes. Thank you first group. मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। जैसे हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे भी हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और गैर फ़ायदे भी होते हैं। So all are agree with this. Now we moving toward the second group, which are Kajal Virwani, Kishan Rathod, Kajol Khatnani, Shrey Kanabar, and Yatri Mandalia. All are there? Yes, yes. Yes. Please turn on your camera. Yes. So as we all know, sir give the option. You have to choose the topic. Okay. Offline and online study, education. Yes. Yes, offline and online. Which topic have you selected? Sir, first topic, online and offline education. Okay. So are you guys ready?
Yes. 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 Okay, so we can start, right? Yes. Yes. So please start. यस मैं हूँ ना ऑफलाइन स्टडी को मतलब वो देना चाहूँगा क्योंकि अभी क्या है कि लॉकडाउन में हमने अभी तक जो एमबीए किया है वो पूरा ऑनलाइन ही किया है। बट ऑफलाइन स्टडी में जितना हम स्टडी के साथ कनेक्ट हो पाते थे उतना हम अभी ऑनलाइन स्टडी में कनेक्ट नहीं हो पाते। हो जाता है बट जो ऑफलाइन स्टडी में हम जितना कॉन्सेंट्रेट के साथ स्टडी में ध्यान दे पाते हैं वो उतना नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर तो ऑनलाइन में तो क्या होता है कि भाई सर वहाँ से लेक्चर ले रहे हैं और हमारे जो क्लासमेट है उसको हम कभी मिले भी नहीं है और हम उसको जानते भी नहीं है। तो क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई हम अकेले ही पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि हमें लगता है कि अगर हम नहीं पढ़ रहे नहीं करेंगे तो किसी को क्या पता चलने वाला है। तो अभी हम ऑनलाइन में इतना स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन स्टडी तब हम इतना कॉन्सेंट्रेट के साथ ट्राई करने की कोशिश करते थे। बट धीरे धीरे क्या होता है कि ये है ना बोर्डम जैसा हो जाता है कि भाई हर रोज लैपटॉप के सामने इतने घंटे बैठे रहो, कुछ समझ में आए तो समझो, ना समझ में आए तो ना कुछ नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो नहीं आंसर मिलता ऐसा नहीं है। बट वो एक रूटीन ऐसा फिट हो जाता है कि भाई आपको कुछ उसमें जैसे आप किसी के साथ फिजिकल कनेक्शन में मतलब आप क्लासरूम में बैठे हो तो अगर आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे तो टीचर्स और वो सब हो गए वो आपको सीधा आपका फेशियल एक्सप्रेशन या वो सब देख के बॉडी लैंग्वेज देख के उसको पता चल जाता है कि भाई इसका ध्यान नहीं है तो वो आपको टोकेंगे ऐसा करेंगे। और ऑनलाइन स्टडी में क्या होता है कि लोग स्टूडेंट और सबके मेंटल स्ट्रेस और वो सब भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आइज प्रॉब्लम जैसे कि मेरे को स्पेक्स है तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन स्टडी में। जो लैपटॉप की वजह से जो आइज को जो इफेक्ट होता है वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ऑफलाइन स्टडी ज़्यादा प्रीफर करूँगा। Yes, of Maybe course. I Shrekisha. also want to go with the offline study क्योंकि ऑफलाइन में क्या है कि इंटरेक्शन भी रहता है टीचर्स के साथ और क्या होता है कि हमारा जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो भी डेवलप्ड होती है जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन स्टडीज में नहीं होती है आजकल। और हम लोग जितना इंटरेक्ट करते हैं ना मतलब जितने हमारे जेस्चर्स टीचर को दिखाते हैं उनको वैसे पता चल जाता है कि भाई इसको पता चला है या नहीं, इसको कितना पता चला है, या फिर हम लोग पर्सनली भी मीट करके मैम से सीख सकते हैं। बट हमारे में ऑनलाइन में क्या रहता है कि कभी कभी नेटवर्क इश्यू आ जाता है, यहाँ ये फिर ये समझ नहीं है तो पर्टिकुलरली हमारे लिए मैम वो चीज़ रिपीट करेंगे लेकिन हमारे ही नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा तो फिर हमको ये समझौता करना पड़ेगा कि भाई ठीक है चलो बाद में समझ लेंगे, लेकिन वो नहीं होता। और ऑफलाइन में क्या है कि चलो क्लास कंप्लीट होने के बाद मैम के पास चले गए एंड रिसेस टाइम पे मैम से सीख लिया। सो आई वुड ऑल्सो गो विथ ऑफलाइन स्टडी। या आई एम ऑल्सो प्रेफर ऑफलाइन स्टडी क्योंकि हम अपने मैम्स के साथ लाइक जो भी अपने फ्रेंड्स न्यू बनेंगे उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन में इंटरेक्शन होता है नो डाउट बट वो मज़ा नहीं आता है। लाइक हमने कभी हम लाइक न्यू फ्रेंड्स से मिलते हैं कुछ वी आर ऑल स्ट्रेंजर्स तो हमें उन्हें पहचानने के लिए लाइक एक बातचीत करने के लिए एक मिलना ज़रूरी है। ऑनलाइन मिल लिया अभी हम सब ऑनलाइन मिले हुए हैं बट कोई किसी को नहीं पहचानता है अच्छी से कोई और मिला भी नहीं है। सो इंटरेक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन के लिए ऑफलाइन स्टडी बेटर है ऑनलाइन से। ऑनलाइन में लाइक बहुत सारे कॉन्स हैं लाइक लेक्चर चालू करके लोग सो जाएंगे फिर लाइक ऑन है लेक्चर बाहर घूमना ये सब चलता रहता है और अब हम सब भी ये करते ही हैं। और सोशल मीडिया गेम्स खेलना ये सब कॉमन चीज़ है जो करते ही हैं सब करते ही होंगे। सो ऑफलाइन स्टडी इज़ बेटर। मैं ऑनलाइन स्टडी की तरफ जाना चाहूँगी। अब ऑनलाइन स्टडी में क्या होता है, अब पेंडेमिक के टाइम पर हम ऑफलाइन तो जा नहीं सकते हैं तो हमारे पास वो एक एडवांटेज है कि हम ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। उससे क्या होता है टाइम और रिसोर्सेज का भी
टाइम एंड रिसोर्सेज भी बच सकते हैं, हम टाइम बचा सकते हैं। और ऑफलाइन में कैसा होता है कि हम कॉलेज जाके फुल टाइम भरना पड़ता है, और ऑनलाइन में क्या होता है कि हम कहाँ कहीं पे भी हो हम लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि वहाँ जाके और वो सब की जरूरत नहीं पड़ती है, पर ऑनलाइन में हम कहीं बाहर गए हो पर लेक्चर स्टार्ट कर देते हो तो हो जाता है। और बस मैं ऑनलाइन स्टडी की तरफ ध्यान रखूँगा। ऑनलाइन स्टडी में मेरे जैसे जो स्टडी करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम विलेज में रहते हैं, उसमें हमें हॉस्टल वो जब सब खर्च उठाने पड़ते हैं, ताकि ऑनलाइन स्टडी हमारे बेहतर है, टाइम भी बचता है और जैसे जैसे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, इसलिए हमें घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। देखो ऑनलाइन में सब कुछ हो जाता है। यात्री ने बोला कि भाई अगर हम बाहर हो गए, कोई इवेंट में हो गए, तो हम लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। वो लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो, वो आप अटेंडेंस के लिए ही लेक्चर चालू करके बैठे हुए। अगर आप कोई इवेंट में हो या कहीं पे आप घूम रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि आपका पूरा ध्यान है वो एजुकेशन पे ही होगा, मतलब लेक्चर में ही होगा आपका ध्यान। आपने एंट्री लगा के बैठे हैं, बट आपको वो सुनाई दे रहा है, बट वो आपके दिमाग में जा नहीं रहा है। अगर मैम आपको आवाज भी हो सकता है, आपका मन हो तो ही आप ऑफलाइन पढ़ते में हो। क्या होता है कि इंटरेक्शन होती है ना टीचर्स के साथ, तो हम समझ सकते हैं, और ऑनलाइन में क्या होता है नहीं, देखो नहीं, ऑफलाइन में कैसा होगा कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आप लेक्चर ही अटेंड नहीं कर रहे हो, तो वो सवाल ही नहीं आता। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो ऑनलाइन में आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं कहीं से। वहाँ क्लास में प्रेजेंट होते हो और मेंटली कहीं और भी हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बट ये जो आप बोल रहे थे कि भाई हम इवेंट में जाते हो या ट्रैवलिंग में जाते हो या लेक्चर अटेंड करेंगे, तो उसका भी मीनिंग वही हुआ। बट ऑफलाइन में आप जितना अटेंड करोगे वो मोस्ट प्रोबेबली आपका ध्यान उसमें होगा, तो आप बिल्कुल समझ सकते हो कि भाई आपने क्या पढ़ा है। नो डाउट ऑफलाइन में भी बंक मारते ही लोग, बट ऑनलाइन जैसा बंक नहीं मारते कि भाई लेक्चर में दिख रहे हैं बट है कहीं पर। और बट ऑनलाइन में जो पढ़ना चाहते हैं वो तो पढ़ ही सकते हैं। ऑफलाइन में मैम ऑफलाइन में जो मैम होती है वो इंटरेक्शन कर सकती है ना, इंडिविजुअल इंटरेक्शन कर सकती है। ऑनलाइन में तो कौन है या नहीं है उन मैम को भी नहीं पता होता। अरे अगर ऑफलाइन हम फैकल्टी से एक बार मिले होंगे तो हमारे और उसके बीच में एक कनेक्शन होता है। अगर यहाँ पर ऑनलाइन में कोई फैकल्टी है तो हम उससे कभी मिले ही नहीं, तो वो हमें ठीक से जानते भी नहीं है। अगर हम उसके साथ वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे, तो नीलम मैम से नहीं मिला है, तो दर्शिनी मैम से नहीं मिला है, सब लोग तुम्हें जानते हैं ना। लेकिन हम दूसरी साइड हम लोग जानने की बात नहीं है, लेकिन हम लोग सम्स की बात करते हैं ना, तो सम्स क्या होता है कि ऑफलाइन में हम लोग यस प्लीज जस्ट एक टाइम पे एक जन बोलिए, एंड दूसरी चीज लाइक पर्टिकुलर किसी का नेम नहीं लीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल। थैंक यू। अगर ऑफलाइन स्टडी में ऐसा होगा कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी क्या होगा कि हम कॉलेज में हैं तो कुछ क्लास अभी कैंसिल हुआ है, तो हम क्या वहीं पे बैठ के दूसरे जिसको आता है उससे वो समझ सकते हैं, और वहाँ पर भी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। यहाँ पर ऑनलाइन में क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आया तो हमें लगा कि कोई नहीं, अभी एग्ज़ाम आएगी ना तब किसी के पास से सीख लेंगे। अभी एग्ज़ाम आएगी तब वो जो बंदा है या कोई और है वो उसके पास भी टाइम नहीं होगा, उसको भी अपना करना होता है, तो वो तभी वो हमारा रह गया, तो वो तभी रह गया। ऑफलाइन में हम कभी भी किसी से भी मिलके या फैकल्टी से डायरेक्ट मिलके वो जो हमारा प्रॉब्लम है वो ठीक से सोल्व कर सकते हैं। हाँ, और एक साइड हम लोग जब भी सम्स की बात करते हैं लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी मिल सकती है। बट हम ऑनलाइन में यूट्यूब और कितने सारे रिसोर्सेज हैं, नहीं ऑनलाइन में होता है जो हम लोग इंटरेक्शन करते हैं ना, मतलब जो सम्स होता है वो
सम्स देखो आप ऑनलाइन में समझते हो, आपको समझ में नहीं आते होंगे, एग्जैक्टली वो चीज नहीं समझ में आती जो ऑफलाइन में समझ आती है। अगर आप टीचर्स के पास ऑफलाइन जाके सम सीखोगे या फिर कुछ भी इंटरेक्शन करोगे ना, तो आपको सही में सही से समझ आती है और उसी वे में समझ आती है जिस वे में मैम समझा रहे होते हैं। और अगर आप ऑनलाइन में समझने जाओगे ना, कभी आपका नेटवर्क इश्यू नड़ेगा, और जब भी एग्जाम की बात आती है कभी वहां पे सम्स पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, तो उसमें क्या होता है कि चलो ना यहाँ पे ना बता देंगे, कोई चीटिंग कर लेंगे या फिर ऐसा कर लेंगे, होता है ना जो चीटिंग कर लेंगे। नहीं, सब यही सोचते हैं आज के। yes, सब कुछ अपने ऊपर ही होता है, हमें क्या करना है सब कुछ हमारे ऊपर ही होता है। बट जब हम फिजिकली मतलब वो सिचुएशन में आते हैं ना, तभी हमें लगता है कि भाई कोई नहीं, छोड़ो ना यार, अभी ये चल रहा है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है तो चलने दो। और ऑनलाइन में एक हमें वो एजुकेशन का एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो हमें ऑफलाइन स्टडी में मिलता है, जो एक माहौल होता है एजुकेशन का। अगर यहाँ पर हम घर में एक कोई कमरे में बैठे हैं और हॉल में गेस्ट आए हैं, तो हमारा ध्यान वहीं पे डाइवर्ट होता रहेगा, और वहाँ पर हम क्लासरूम में बैठे होंगे तो क्या एक एनवायरनमेंट बनता है पढ़ाई को लेके। बट हम घर पे कंफर्टेबली बैठ के पढ़ सकते हैं, वो तो एडवांटेज है। कंफर्टेबली तो पर लाइक अपन लाइक सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक अपने लेक्चर्स चलते हैं, तो कितना अपन को लाइक होता है कि चलो बैठते हैं, शांति से बैठते हैं, वो तो हो जाता है, तो उधर तो हमें कंपलसरी बैठना ही है, वो तो हमें पता है, अपना मूड नहीं होगा तो भी अपन बैठेंगे। और ऑनलाइन में तो स्टार्ट करके हम लोग किधर भी घूमते रहते हैं। और इसका एक डिसएडवांटेज है कि भले आपको है ना कंफर्टेबली हो, लेकिन आपके जो आईज में, हाँ, जो आपको आईज में इफेक्ट पड़ती है ना, वो जो फोन की जो लाइट होती है उसके लिए मैंने स्पेशली वो लिया है, क्या बोलते हैं, स्पेक्स लिए हैं प्रोटेक्शन के लिए। ऑफलाइन में कैसा होता है, हम व्हीकल लेके जाते हैं, रास्ते में क्या हो जाए किसे पता, सबको। अरे बट ये तो हमारा ये तो हमें मेंटली अफेक्ट करता है, वो होगा, वो पता नहीं फिजिकली ही हमें कुछ प्रॉब्लम होगा, वो तो किसी को भी वैसे आप पढ़ने जाते होगे या आप घूमने जाते होगे या आप जॉब पे जाते होगे, तो वो तो वैसे भी एक्सीडेंट तो वो सब तो होता है, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं। बट अभी जो ये हम मोबाइल और लैपटॉप का इतना ज़्यादा यूज हो गया है ऑनलाइन स्टडी के लिए, और हमारी बात तो ठीक है, अभी छोटे बच्चों को भी जो मेरा एक भांजा है जो 6 इयर्स का है, उसको बेचारे को सुबह 8 बजे बैठ के लैपटॉप के सामने बैठा देते हैं। भाई उसका थोड़ा तो सोचो, उसकी आंख पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको 4-4 घंटे उसको लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने बिठा देते हैं। भाई उसका मेंटल स्ट्रेस तो देखो थोड़ा आप। बट आप अभी पढ़ रहे हो, ऐसी बात करिए फर्स्ट। हेलो, बट yes please, 1 minute. now concluding statement for each participant. यस, मेरा कंक्लूजन ये है कि भाई ऑफलाइन स्टडी है ना, वो जस्ट वेट, प्लीज गिव अ 5 मिनट या 2-3 मिनट्स। 2 minutes, काजल। 2 minutes. ओके फाइन। और लाइक 2020 में एक सर्वे के अनुसार लाइक लोग जो बच्चे हैं 18 से कम उम्र के, लाइक 5 से लेकर 18 की उम्र के हैं, उनको ऑप्टिकल न्यूराइटिस की एक बीमारी हो रही है। लाइक जो नर्व होती है अपनी आईज के पास में, वो उनमें स्वेलिंग आ जा रही है, उसमें बच्चों को ब्लाइंडनेस भी हो रहा है। तो ये जो ब्लाइंडनेस है वो जो है वो ऑनलाइन लेक्चर और पूरा दिन स्क्रीन को देखना, तो उससे ही ये जो सब प्रॉब्लम्स हुए हैं। कभी ऑफलाइन स्टडी में तो कभी देखा नहीं कि किसी बच्चे को ब्लाइंडनेस आई हो या कुछ प्रॉब्लम हो, चश्मे आए हो। यस एग्जैक्टली। या तो अभी कंक्लूड कर दे। यात्री आप कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में? Yes, you can conclude now. ओके, तो मैं तो ऑफलाइन स्टडी को ही प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि ऑफलाइन स्टडी है ना ऐसी चीज़ है कि भाई अगर आप किसी भी बच्चे को ले लो, अगर छोटा बच्चा होगा उसको आप ऑनलाइन के सामने ऐसे स्क्रीन पर बिठा दोगे, बट उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, जैसे ऑफलाइन में उसको समझ में आता है, क्योंकि ऑफलाइन में उस पर वो फिजिकली एक उसको वो डर होता है कि भाई नहीं करेंगे तो टीचर ऐसा बोलेंगे। यहाँ पर तो ऑनलाइन में तो क्या होगा भाई, नेटवर्क इश्यू बता देंगे, कुछ भी कर देंगे, हम ऐसे बच जाएंगे।
और छोटे बच्चे तो कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते, हमारी तो हम तो बड़े हो मैच्योर है तो हम कर लेंगे, बट ऑफलाइन स्टडी है ना वो बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी लॉकडाउन से पहले भी सबके लिए थी ही, यूट्यूब पे भी लेक्चर्स होते ही थे, बट अभी जो लॉकडाउन से जो सिचुएशन आई है कि बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन स्टडी में करना पड़ता है, उनको इतना मेंटल स्ट्रेस मिलता है भाई कि उसको भी छोटी ही उम्र में ही सर दर्द और माइग्रेन का वो प्रॉब्लम होने लगता है, तो मैं तो ऑफलाइन स्टडी को ही प्रेफरेंस दूंगा। आई एम ऑल्सो प्रेफर ऑफलाइन स्टडी, क्योंकि एक लाइक अपने तो लाइक बड़े बच्चे हैं तो पर जो छोटे बच्चे हैं 5 से 18 साल के बीच की उम्र के बच्चे हैं, उनको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक एनवायरनमेंट मिलता है स्कूल जाके, उनको उधर जो चीज़ें सिखाई जाती है वो अपन घर पे नहीं सिखा सकते, उनको बिठाना 4-5 घंटे वो बहुत डिफिकल्ट है पेरेंट्स के लिए। और वो लोग लाइक कुछ भी एग्जाम होती है तो कोई क्वेश्चन आया तो हम डायरेक्ट जाके गूगल कर देते हैं, तो वो लोग वही सीख रहे हैं, अपना ब्रेन यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनका ब्रेन का जो कुछ पार्ट है वो भी डैमेज होता जा रहा है, तो उससे कई सारी बीमारी हो सकती है। सो ऑफलाइन स्टडी इज बेटर देन ऑनलाइन स्टडी। आई एम टोटली एग्री विथ यू, बट अभी कैसा है, पेंडेमिक में ऑफलाइन करेंगे तो हमारी मीन्स के छोटे बच्चे हो क्या हम बड़े लोग हो कैसे सीखने बढ़ रहे हैं कि हम ऑफलाइन स्टडी कर ही नहीं सकते, तब वो ऑनलाइन स्टडी बेटर है। सिचुएशन की वजह से हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं ना, अगर सिचुएशन ऐसी नहीं होती तो हम लोग ऑफलाइन ही प्रेफर करते, और काफ़ी सारे पेरेंट्स ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं। अभी सिचुएशन को हमें हैंडल करना है इसलिए हम लोग ऑनलाइन स्टडी करें, वरना इतने साल तक लाइक समथिंग अपने पढ़े हैं तो 20 साल तक हो गए हमें पढ़े हुए, तो हमने तो कभी ऑनलाइन स्टडी नहीं की, लाइक सिचुएशन की वजह से हम लोग ऑनलाइन स्टडी पे हमें मोड मीन्स यूज करना पड़ा ये मोड, वरना तो हम लोग ऑफलाइन स्टडी को ही पहले प्रेफर करते थे। लेकिन हमें हेल्प भी हुई ना, हम अभी प्लीज ओला स्टॉप, जस्ट अ मिनट, ओनली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट प्लीज। ओके, सो मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि ऑनलाइन स्टडी बेटर है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें ज़्यादा नॉलेज मिलता है, बिकॉज पीपीटी प्रेजेंटेशन हो कैसे भी देना हो वो हम अब सीख रहे हैं, आईटी और आईटी का वर्क है वो भी अब हमें आने लगा है, और कैसा डिस्टेंस, हम डिस्टेंस कहाँ से भी हो, राजकोट वाले हो या अहमदाबाद वाले हो या सूरत वाले, ऑनलाइन स्टडी से वो कहाँ से भी हो हम पढ़ सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम अपना ईयर एक पेंडेमिक की वजह से हम अपना 1 और 2 ईयर बर्बाद कर दे, उससे अच्छा है कि हम ऑनलाइन स्टडी से पढ़ सकते हैं। दैट्स माय पॉइंट। Yeah, according to me, offline, or I would like to go with offline study because उसमें interactions भी होते हैं, साथ साथ में हमको पढ़ने का भी, और yes, interpersonal skills हमारी बढ़ती है, और दोनों के pros and cons है, लेकिन offline study is better। या और ऑनलाइन स्टडीज में हमारे बहुत सारे पार्ट्स इतने डैमेज हो जाते हैं ना, मतलब क्या ही बताए, तो आई वुड लाइक टू गो विथ ऑफलाइन। I'm also favor in offline. Thank you all the group number second. Also offline and online both have a so सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। जो रूरल एरिया से, हेलो एम आई ऑडिबल? यस यस। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। जो ऑफलाइन है तो हम क्या है कि टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हैं, पर ऑनलाइन में क्या है कि कई लोग जो रूरल एरिया से प्रिफर करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन बेस्ट रहता है। सो गुड जॉब सेकंड ग्रुप। एंड नाउ इट इज़ मैं एक ग्रुप देना चाहती हूँ जो सबके लिए ओपन है, जो कोई डिस्कस करना चाहता है कि जो 5G नेटवर्क है उसके फायदे और प्रोज एंड कॉन्स। 5G नेटवर्क इज अ बेटर और नॉट? तो कोई डिस्कशन करना चाहता है 5G नेटवर्क के ऊपर कि उसके क्या फायदे हैं, उसके प्रोज कितने हैं, उसके कॉन्स क्या है? अभी वो काफी चर्चे में चल रहा है।
Yeah, even Can I audience say also something? can participate. Yeah, sure. Okay. So 5G network इज नॉट गुड थिंग कि 4G से इतना रेडिएशन बढ़ रहा है तो 5G क्यों लाया जाए। 4G से भी स्पीड आ रही है, अच्छे से स्पीड आ रही है। 5G का डिसएडवांटेज ही है। एडवांटेज तो वही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है मल्टीनेशनल, जहाँ पे बहुत सारा इंटरनेट यूज होता है, वहीं पे वो लोग वाईफाई राउटर या ऐसा कोई बड़ा सा कोई चीज वो नेटवर्क के लिए तो वो ले ले, रादर देन गो फॉर दी 5G नेटवर्क। 5G नेटवर्क इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। बिकॉज अगर हम देखें कि फ्रीक्वेंसी जो टावर की और अपने मोबाइल की देखें तो आराम से पिंग आ जाती है। So that's not good if 5G आए। There are lots of disadvantages comes in if 5G comes in India. Yes, I agree with Ritik because ये 5G नेटवर्क का कैसा है कि वो अगर यहाँ पे आएगा तो वो एक चीज़ तो ऐसी है कि भाई 5G नेटवर्क को लाने के लिए और 4G को हटाने के लिए जो लोग अभी 4G कंपनी से वो 4G यूज़ कर रही है नेटवर्क प्रोवाइडर के रूप में, उसको क्या होगा कि उसको 5G चाहिए होगा तो करप्शन और वो सब करना पड़ेगा। एक चीज़ तो वो होगी। और 5G अभी 4G से सब लोग सेटिस्फाइड है। 4G ठीक से नेट भी प्रोवाइड हो रहा है, स्पीड भी बढ़िया आ रही है, कुछ दिक्कत भी नहीं है, प्राइसिंग भी बरोबर है। तो फिर हम 5G लाके एनवायरनमेंट को क्यों नुकसान करते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा उसका प्रॉब्लम है ना वो एनवायरनमेंट को ही होता है। जैसे कि उसके जो रेडियस है उससे बर्ड्स को इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है, बर्ड्स को प्रॉब्लम होता है, उसको उसकी हियरिंग और उसको दिखने में और वो सब तो उसको प्रॉब्लम होता है। और पेड़ पौधों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और उसके रेडियस की वजह से एनवायरनमेंट में जो एक सर्कुलेशन एक ज़्यादा रेडियस की वजह से उत्पन्न होता है, उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो 5G की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आ रहा है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर। मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि 5G से क्या होता है कि जैसे 4G है तो अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी जगह पे आया था, जैसे कि अगर आप अपने सिर पे रख के सो जाते हो फोन नेट चालू करके और एनीथिंग जो भी हो, तो आप एक वीक तक उसको करोगे ना, अपने सिर पे फोन रखो और नेट चालू करके सो जाओ, तो आपको एक वीक के अंदर आपके बॉडी के अंदर थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। ऐसे रिसर्च रिपोर्ट कहती है यूएसए की। सो 5G नेटवर्क इज नॉट गुड। 4G से भी वही क्लिक से हम कुछ भी ऑर्डर करने वाले हैं तो इमीडिएट हो जाता है। तो 5G से उससे ज़्यादा स्पीड से नहीं होगा, वो नॉर्मल से ही होगा। आपकी 1 Mbps या 2 Mbps स्पीड आती है रेगुलर में। 5G से मैक्सिमम 500 kbps बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो 5G और 4G में कोई ऐसा होगा नहीं डिफरेंस। 4G उतनी स्पीड देता है, ऊपर 4G ज़्यादा देता है ऊपर से स्पीड। तो 5G का मतलब नहीं है इंडिया में। कोई है जो अपना ओपिनियन देना चाहता है 5G नेटवर्क के ऊपर? Okay, now it is time to declare the winner, and I would like to request Sir Kiran Sir to announce the name of winner. हेलो। ओके, सो बहुत ही अच्छी डिबेट रही और काफ़ी कुछ है और मैंने गौर से सुना भी है और बहुत कुछ नोट भी किया है। तो उसकी मैंने जो नोट किया, मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसके बाद हम जाएंगे नतीजों पर। सो सबसे पहले डिबेट कोई भी हो सकती है, आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं होता। जैसे कि हम सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है इसके ऊपर डिबेट कर रहे थे, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की बातें कर रहे थे। सो कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है ऐसा नहीं है, डिपेंड्स वो है कि हम अपनी आर्ग्यूमेंट्स कैसे रखते।
क्या हम कितने कितने पॉइंट्स देते। तो मैंने जो देखा है, मैंने जो जिस तरीके से आपको इवेल्युएट करने का कोशिश की है वो है कि कौन कि कैसे एग्जाम्पल्स देता है, किस तरीके से अपनी बात रखता है, कैसे प्रेजेंट करता है, ये सब चीजों को मैंने ध्यान में ज्यादा लिया है। और मैं इंडिविजुअली नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी डिबेट की है। मैं कुछ नाम देना चाहूँ तो ध्रुवीन है, हेतवी है, काजल, काजोल दो है शायद, और कुछ कुछ नाम तो मैंने निकाल दिए, लेकिन बहुत सारे अच्छी एक ही। अब मैंने पॉइंट्स गिने हैं कि आपने ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स दिए जो कि थोड़े हटके थे और उसमें कुछ दम था। तो इस हिसाब से अगर मैं सोशल मीडिया वाली बात करूं तो मैंने उसमें दो ग्रुप डाले थे, मतलब इस हिसाब से मैं उसको समझ रहा था। एक है गुड बोलने वाले और एक है इसको बैड बोलने वाले। तो ज्यादा मैं इसको अंदर से देखूं तो गुड जिन्होंने बोला है, जिन लोगों ने ऐसा बताया कि सोशल मीडिया अच्छा है, तो उन्होंने मेरे हिसाब से 5 ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसके साथ अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखी है जो थोड़ी हटके हैं और जिसके लिए थोड़ी बहुत सोचना जरूर होता है। और इनकी कंपेयर करूं मैं अगर इन लोगों से जिन्होंने ऐसा बोलने का बताया कि जो अच्छा नहीं है सोशल मीडिया, तो उनके इन कंपेयर टू गुड उनके 3 ही ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं मेरे हिसाब से। सो अगर इन दोनों को बीच में कुछ बात की जाए कि क्या अच्छा था क्या बुरा था, तो मुझे गुड जिन्होंने बताया है वो लोगों की डिस्कस अच्छी लगी। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की, जिसने डिस्कस किया है कि ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है। तो उसमें भी काफी लोगों ने बहुत ही अच्छी डिस्कस की। ऑनलाइन ऑनलाइन अच्छा है ये कहने में मतलब जिन लोगों ने इसके फेवर में जो बोला कि ऑनलाइन अच्छा है, उनके जो एग्जाम्पल्स दिए गए हो उसमें से मुझे 4 ऐसे एग्जाम्पल्स लगे हैं कि जो कि थोड़ी बहुत सोच करके दिए हैं और अच्छे हैं। अब बात करें ऑफलाइन की, तो इन कंपेयर टू ऑनलाइन, ऑफलाइन वालों ने जो बोला इसमें कुछ 6 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं कि जो कि ऐसे थे कि थोड़े आर्ग्यूमेंट्स में अच्छे हैं और दमदार लगते थे। तो इस हिसाब से अगर इन दोनों की कंपैरिजन की जाए कि डिबेट में क्या अच्छा रहा, तो ऑफलाइन की फेवर करने वालों की जो डिबेट थी वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी। मेरे ख्याल से इतना ही काफी है जज करने के लिए। और अगर कुछ आगे बढ़ा जाए और ऐसा माने कि कौन सा वाला ग्रुप ने अच्छी डिबेट की, तो सभी ने अच्छी की है, लेकिन फिर भी आगे मैं थोड़ा जाता हूँ तो अभी बात यहाँ पर आके रुकती है कि मजा किस में आया। दो ग्रुप ने जो डिस्कस की, तो डिस्कस सुनने में मुझे ये टोटली पर्सनल है। सो ये मेरा ही ओपिनियन हो सकता है, इससे कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपनी बात करूं कि मुझे सुनने में कौन सी डिबेट अच्छी लगी, तो अगर मैं 10 में से नंबर देना चाहूँ तो ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में जो डिस्कस हुई है उसको मैं 5 दूंगा आउट ऑफ 10। और सोशल मीडिया पर जो डिस्कस हुई उसको मैं 6 देता हूँ, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स तो थे कम इसके इससे, लेकिन काफी लोग एक्टिव थे और थोड़ा डिफरेंटली बता भी रहे थे, उनके पॉइंट्स भी अच्छे थे और एक्टिव भी ज्यादा थे। सो इस हिसाब से मैंने ये किया है, लेकिन दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन माय ओपिनियन। सो दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम माय साइड। Anybody wants to say anything or any? हेलो सर Yes, sir. आप बेसिकली सिर्फ ग्रुप के नाम बता दीजिए 1 एंड 2 जो फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर है, तो सबको पता चल जाए परफेक्टली। ओके। सो अगर जो मैंने अभी बताया इस हिसाब से अगर हम सोचे तो अगर फर्स्ट किसी को बताना हो तो फर्स्ट ग्रुप एक 1 आएगा जिसने डिस्कस की है सोशल मीडिया गुड और बैड। एंड द सेकंड नंबर पे मैं लूंगा ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन।
बट आफ्टर ऑल यू ऑल आर गुड। बहुत बहुत अच्छे से डिबेट हुई, और मैं ऐसा तो मतलब नाम नहीं जानता, लेकिन मैं आपको चेहरे से देखा कि बहुत अच्छा अच्छा कर रहे थे। तो इंडिविजुअली मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अच्छा किया, and really I become very happy, and thank you very much for giving me this opportunity to be part of this discussion. Okay, over to you, Akash. Vidhi, you can conclude the event. Yes. First of all, many congratulations to all the group. We will mail the certificate soon. So here, I Vidhi Kadiwar, signing off for today. Hope you all are enjoying the event. Thank you so much for all the participants for being a supportive and being a part of event. Uh, and Especially thank to Kiran sir for being a judge. And Also thanks for Neelam ma'am who give such an opportunity to say such an event with you. So thank you so much all the participants. Thank you so much sir. Thank you. Thank you very much. एक बार अपना कैमरा सब लोग ऑन कर सकते हो तो कर लो, तो स्क्रीनशॉट ले ले हम सब। I hope all are enjoying the event. Yes, yes. Okay, you can leave now.